Good morning, everyone. So, hope you have gone through all the chapter about the tribal groups that we have discussed. What are the various tribal groups? What occupations they are doing? Okay, and when Britishers came to India, then what was the effect of that colonial rule on Britishers? So, we have discussed this. So, hope you have gone through all these points about the tribal groups and who were Dikus for these tribals. So now we will have more discussion on Birsa Munda, a closer look at Birsa Munda. So Harman, he has prepared this topic. So first he will explain, then we will continue our discussion. Yes, Harman. Good morning, ma'am. Good morning. Birsa was born in the mid 1870s, the son of a poor father. He grew up around the forest of Bohanda by playing flute, dancing in the local akhadas. His father was very poor and he had to move from place to place for looking for work. As the age of Birsa was adolescence, one day he listened his leaders they were talking about the golden age of Mundas when they were free from the oppression of Dikkus, and Birsa went to a local missionary school. There too he heard that Mundas could regain their past and attain the kingdom of heaven. In 1895, Birsa started a movement and gathered people and encouraged them to revolt against government and Dikkus, and told them about the golden age of Mundas. And this by this the British officers got worried and they arrested Birsa, and for 2 years. After 2 years, Birsa again came out from the jail, and he again gathered people, villagers, and started the movement. And they raided um moneylender's house, and in 1900 Birsa died due to cholera, and this movement faded out. But this movement had some important. It forced the colonial government to introduce laws so that land of the tribals could not be easily taken over by the Dikkus. Second, it showed once again that the tribal people have the power to revolt against the colonial rule and injustice. Very good. So, in brief, ki who was Birsa Munda? Okay, who was Birsa Munda and how he got this movement? ठीक है, movement किसके अगेंस्ट थी उनकी? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. What was not only Britishers, सिर्फ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं थी. ठीक है. So earlier Birsa Munda, he was born in a poor family. ठीक है. And poor family of Munda tribe. ठीक है. The Birsa Munda, so he was belonging to Munda tribe. Okay. And yes, Arish, whatever you have written, it is not clear. Yes, who will explain that who are Dikkus in this chapter that we have discussed? Who are Dikkus? Raise your hand. Hanji, Arish. Yes, ma'am, outsiders which came from outside. Yes, outsider. Who were outsiders to these tribal groups? The Traders, money lenders, and later on British officials. So all these were Dikkus for these tribal groups. So with this Birsa Munda, so he was from a poor family. His father was very poor and doing some odd jobs, okay, looking for work and moved from here to there. And then when he was adolescent, okay, adolescent means कि now you are going in adolescence age, है ना? So कि इस एज में उसने बहुत सारी टेल्स स्टोरीज सुनी. कौन सी स्टोरी सुनी उसने? कि जो मुंडास ट्राइब के लोग थे उन्होंने अपने जो राइट्स हैं उनको बचाने के लिए बहुत उन्होंने प्रोटेस्ट किया है. ठीक है. उसने गोल्डन एज की बातें उस टाइम पे सुनी.
कि किस तरह इन डिकूज के अगेंस्ट इस अपने मुंडा ट्राइब के लोगों ने किस तरह प्रोटेस्ट किया है और अपने राइट्स के लिए कोशिश की है। तो इस तरह वो इस तरह की बातें भी करने लगा। जब उसने इसी टेल सुनी तो वो बातें उस तरह की उसने शुरू कर दी। फिर वो मिशनरी स्कूल, उस टाइम पर जो क्रिश्चियन थे उन्होंने मिशनरी स्कूल एस्टैब्लिश किए हुए थे, जिसमें कि क्रिश्चियन लोगों को अपना रिलीजन चेंज करने के लिए भी उनको बोला जाता था कि आप क्रिश्चियन बन जाओ। ठीक है, तो उसने जब क्रिश्चियन स्कूल ज्वाइन किया तो वहां पे भी उसको यही सीखने को मिला कि जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मुंडास की प्रॉब्लम है, वो हेवन उनको मिल सकती है, कि दे कैन अटेन हेवन, बट दे हैव टू लीव देयर बैड हैबिट्स। जितनी उनकी बैड हैबिट्स है वो उन्हें छोड़नी पड़ेगी। दे हैव टू अडॉप्ट द क्रिश्चियनिटी। ठीक है, क्रिश्चियनिटी को उन्हें अडॉप्ट करना पड़ेगा। वो गुड क्रिश्चियन अगर बन जाएंगे, बैड प्रैक्टिसेस को छोड़ देंगे, तो उनको हेवन मिल जाएगी। ठीक है, तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। फिर वो थोड़ी देर के लिए वैष्णव, जो उस टाइम पर प्रीचर्स थे, ठीक है, हम कह सकते हैं कि उनके वैष्णव, जैसे कि अलग अलग जो विष्णु की पूजा करते थे, तो उस तरह के वैष्णव प्रीचर मतलब टीचर, ठीक है, सॉरी ये तो वैष्णव जो टीचर थे, इस तरह उनके साथ भी वो थोड़ी देर रहा, जिससे कि उसको ये सीखने के लिए मिला कि हमने अपने आप को प्योरिटी और डिवोशन की, हमने डिवोशन मतलब भगवान की भक्ति कैसे करनी है, अपने आप को प्योरीफाई कैसे करना है, बुरी बैड प्रैक्टिसेस कैसे छोड़नी है। ठीक है, तो ये भी उसने उनके पास सीखा। तो इस तरह उस बिरसा मुंडा के ऊपर बहुत सारे आइडियाज का इफेक्ट हुआ जबकि वो अपनी ग्रोइंग एज में था, और इस तरह उसने अपनी ट्राइबल सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश की, उसमें सुधार लाने की कोशिश की। उसका एम था कि वो सुधार लाएगा, जिसके कि उसने मूवमेंट अपनी स्टार्ट की। ठीक है, अब इस मूवमेंट में उसने क्या क्या शामिल किया कि टू लीव द बैड, गिव अप बैड प्रैक्टिसेस, कि जो भी उनकी बैड प्रैक्टिसेस हैं, अब बैड प्रैक्टिसेस में क्या क्या आता था, टू गिव अप द लिकर, जैसे अगर वो लिकर ले रहे हैं, ठीक है, तो यस बच्चे आपकी बुक में वर्ड दिया हुआ है कि वैष्णव प्रीचर के पास जाके वो प्योरिटी और पाइटी से उसका जुड़ गया। प्योरिटी मतलब अपनी सोल को प्योर बनाना, ठीक है, और पाइटी मीन्स कि भगवान की भक्ति करना, डिवोशन करना। तो वो चीजें, तो ये आइडियाज भी काफी उसको इन्फ्लुएंस किया, तो उसको उसकी इंपॉर्टेंस समझ आई कि इम्प्योरिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। अब उसने जो मूवमेंट स्टार्ट की, तो उस मूवमेंट में पहले तो उसने लोगों को बुरी जो उसकी हैबिट्स थी, अब बुरी हैबिट्स क्या थी, गिव अप बैड प्रैक्टिसेस। बैड प्रैक्टिसेस कौन कौन सी, लिकर जैसे वाइन उसको छोड़ना, अपने विलेजेस को क्लीन रखना, ठीक है, ये सारी बैड जो करते थे, गंदा रखते थे, उसको क्लीन रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें करनी है। लेकिन बिरसा जो थे मिशनरीज, ये सिर्फ अब वो मिशनरी स्कूल भी गया, वैष्णव प्रीचर, ये नहीं कि वो उनके फेवर में हो गया, ठीक है, ही वाज अगेंस्ट, ये इन सबके अगेंस्ट था और उनको आउटसाइडर्स मानते थे। ठीक है, वो एक ग्लोरियस पास्ट जो थी, गोल्डन एज की बात करता था, जो ही टॉक्ड अबाउट गोल्डन एज। जो बिरसा मुंडा था वो गोल्डन एज की बात भी करता था। गोल्डन एज क्या होगी, जिसमें कि मुंडास एक बहुत अच्छी लाइफ रहेंगे, ठीक है, रिवर्स के ऊपर उन्होंने अपनी एम्बैंकमेंट्स बनाई हैं, अपने एरिया से वो हंटिंग कर रहे हैं, अपने एरिया से वो अपने हिसाब से वो कल्टीवेशन कर रहे हैं। ठीक है, हंटिंग बैड प्रैक्टिस तो है ही, ठीक है, हंटिंग भी बैड प्रैक्टिस ही थी, तो लेकिन उनके लिए तो उस टाइम पे कैसे थे ना कि एक जरूरत थी, क्योंकि वो हंटर गैदरर्स ही थे। लेकिन जैसे शराब पीना, क्लीनलीनेस नहीं रखना, तो वो बैड प्रैक्टिसेस को वो मानते थे। ठीक है, और इसमें जैसे मूवमेंट में आ गया कि पहले तो उसने बैड प्रैक्टिसेस जो थी उनको छोड़ना है, फिर वो गोल्डन एज की बात करता है, जब जो मुंडास है वो बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, अपने ट्रीज प्लांट कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, ठीक है, अपने एक दूसरे के ब्रदर्स को उनको नहीं मार रहे हैं, आपस में बहुत प्यार से रह रहे हैं, ऑनेस्टली रह रहे हैं। तो इस तरह वो चाहता था कि इस तरह की गोल्डन एज वहां पे हो। लेकिन इस तरह की गोल्डन एज में कौन थे, वो किसके अगेंस्ट था, जो डिकूज था उनके अगेंस्ट था, कि ये जो डिकूज हैं ये उनकी गोल्डन एज की पूरी विजन जो है
वो उसको पूरा नहीं होने दे रहे, ये सभी उनके एनिमीज हैं, ठीक है। तो ये सारी उनके अगेंस्ट हैं। तो बिरसा मुंडा, अब इसमें डिकूज में कौन कौन आ गए, डिकूज में क्रिश्चियन मिशनरीज भी आ गए, ठीक है। अब डिकूज में क्रिश्चियन मिशनरी सभी आ गए। अब इसीलिए ये जो उसका पूरा विजन था, इसीलिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भी इसके अगेंस्ट हो गई थी, ठीक है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, वो इसके अगेंस्ट हो गए बिरसा मुंडा के, ठीक है। वो इसके अगेंस्ट हो गए और उन्होंने इसको अरेस्ट भी किया था, थोड़ी देर के 2 साल के लिए इसको अरेस्ट भी किया था, लेकिन 2 साल के बाद छोड़ भी दिया। 1895 he was arrested and in 1897 he was being released from the jail. तो अब बिरसा मुंडा के अगेंस्ट क्यों थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ठीक है, और स्पेशली बिरसा मुंडा के अगेंस्ट क्यों थे? बिकॉज जो बिरसा मुंडा था वो एस्टेब्लिश करना चाहता था मुंडा राज, ठीक है। वो क्या करना चाहता था, वो मुंडा राज एस्टेब्लिश करना चाहता था। उसकी मूवमेंट का ही एक पार्ट था कि वो बैड प्रैक्टिसेस लोगों को छोड़ने के लिए कह रहा है, वो गोल्डन एज की बात कर रहा है, वो डिकूस को वहां से बाहर निकलने के लिए कह रहा है और मुंडा राज एस्टेब्लिश करने के लिए कह रहा है, ठीक है। सो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे वो इसके अगेंस्ट इसलिए हो गए क्योंकि वो उसका पॉलिटिकल, क्योंकि वो अब ब्रिटिश का तो वहां पे कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपना ही राज वहां पे एस्टेब्लिश कर रहा है, जबकि ब्रिटिशर्स वो अपना राज वहां पे एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वो वहां पे कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इसलिए वो बिरसा मुंडा के अगेंस्ट हो गए, ठीक है, बिकॉज दे वांटेड, बिरसा जो था वो सभी डिकूज को, जो मिशनरीज, मनी लैंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स जो कि वहां पे मनी लैंडर्स आते थे, सबको वो बाहर निकालना चाहता था, ठीक है। अब सभी उसके अगेंस्ट क्यों थे, ठीक है। जैसे अगर क्रिश्चियन मिशनरीज की बात करें तो वो उनको कह रहे थे कि आप सारी अपनी बैड प्रैक्टिसेस छोड़ दो और क्रिश्चियन बन जाओ, वो उनको क्रिश्चियन बनने के लिए कह रहे थे, ठीक है। ये भी कह रहे थे कि यू आर, अब इसी में से कुछ लैंडलॉर्ड भी थे, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स जो कि उनकी लैंड पे कब्जा कर रहे थे, कुछ इस तरह के हिंदू लैंडलॉर्ड्स भी थे जो उनके कब्जा कर रहे थे, तो ये सब उनके अगेंस्ट थे, ठीक है। उनके ट्रेडिशनल कल्चर के ऊपर, सभी के ऊपर वो क्वेश्चन उठा रहे थे, तो इसलिए बिरसा मुंडा इन सभी के अगेंस्ट था। और ये ब्रिटिशर्स ने इसीलिए उसको अरेस्ट भी किया, लेकिन फिर लोगों की थोड़े ज्यादा अपराइजिंग हो गई तो फिर उसने थोड़ी देर छोड़ भी दिया, ठीक है, रिलीज भी कर दिया। फिर उसने दोबारा से आके लोगों का अपना लोगों का सपोर्ट था वो गैदर करना शुरू कर दिया, ठीक है। यस, तो उस टाइम पर जमींदार जो थे वो सिटीज के एरिया में थे, ट्राइबल एरियाज में हम जमींदार कह सकते हैं लैंडलॉर्ड्स को भी, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। फिर उसने सिंबल्स यूज किए, ठीक है, उसके कुछ सिंबल्स थे अपने, ठीक है, उसने कुछ सिंबल जैसे व्हाइट फ्लैग उसने यूज किया एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज, बिरसा राज का उसने सिंबल यूज किया व्हाइट फ्लैग, यस, ठीक है। तो व्हाइट फ्लैग यूज किया, उसने कहा कि ये जो जितने भी डिकूज है ये हमारे लिए रावण है यूरोपियन, तो इनको हमने हटाना है यहाँ से और खत्म करना है और अपनी जो किंगडम है वो एस्टेब्लिश करनी है। तो लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में इसको कलेरा हो गया और फिर उसकी वजह से इसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो कलेरा की वजह से इसकी उस टाइम पे डेथ हो गई, तो ये अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू नहीं कर पाया, ठीक है। और उसके बाद लेकिन ये सारी चीजों से एक चीज हमें क्या क्लियर हुई, ये उसकी मूवमेंट की इंपॉर्टेंस क्या थी, ये जो उसकी मूवमेंट थी, ठीक है, तो इस मूवमेंट की सिग्निफिकेंस क्या थी, ये मूवमेंट जो भी बिरसा मुंडा ने चलाई तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी। सबसे पहली सिग्निफिकेंस तो इसकी ये थी कि जो बिरसा मुंडा है, पहले तो गवर्नमेंट ने कोशिश की एक लॉज ऐसा बना दिया कि कोई भी लैंडलॉर्ड आके इनकी लैंड के ऊपर कब्जा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस द लॉ that land of tribal could not be easily taken over by डिकूज, कि जैसे कोई भी मनी लैंडर आ रहा है, उनको लैंड रेंट दे रहे हैं, ठीक है, लोन दे रहे हैं, अगर वो लोन नहीं रीपे कर पाए तो उनकी लैंड पे कंट्रोल करते जा रहे हैं, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए कुछ लॉस, ठीक है। तो इस तरह ये उन्होंने लॉस वहां पे कर दिए। एक तो ये इसकी सिग्निफिकेंस थी इस मूवमेंट की, ठीक है, कि ब्रिटिशर्स ने लॉज इंट्रोड्यूस किए। लॉज क्या इंट्रोड्यूस किया कि कोई भी जो डिकूज है
उनके लिए डिफिकल्ट था उनकी लैंड पे कंट्रोल करना, ठीक है, जो लैंड थी वो ऐसे ही कंट्रोल नहीं कर सकते थे। और सेकंड, इस मूवमेंट ने ये शो कर दिया कि नाउ दीज ट्राइबल दे हैव द कैपेसिटी that they can, yes it is correct ki that they can stop the British rule, they have power, it is correct Arish, Akul, yes ki that they can push away the outsiders from their area, ठीक है। so it means they had the capacity to protest कि उनमें इतनी काबिलियत है कि अगर कोई बाहर वाला पर्सन आता है तो वो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसको वहां से भगाने की हिम्मत रखते हैं वो, ठीक है। so they had the capacity, ठीक है। सो ये अब उनमें लास्ट में ये क्लियर हो गया कि दे हैड द कैपेसिटी टू रूल, फाइट अगेंस्ट, कैपेसिटी किसकी है उनमें, फाइट करने की, क्योंकि वो फाइट कर सकते हैं टू अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर उनके साथ इनजस्टिस होता है, ठीक है, अपने राइट्स के लिए फाइट कर सकते हैं, क्लियर, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दिस ट्राइबल्स, these Dikus, what was the effect and what was the vision of golden age by Birsa Munda, and what was the significance of movement of Birsa Munda, okay। so this is all about this chapter. So now if there is any doubt, so please let me know, then we will move to the question answers, okay। So we will move to question answers. So let's discuss the first question. What problems did the shifting cultivators face under British rule? Yes, who will let me know? Yes, Nandini. Yes, ma'am. Problems faced by shifting cultivators under British rule were due to changes in forest laws under the British. Life of shifting cultivators was badly affected. They were not allowed in reserved forest and practice shifting cultivation. As a result, they had to move to other areas. Other problems were dry soil, poor yields, and lack of resources produced. Yes, तो shifting cultivators की प्रॉब्लम्स क्या थी कि ब्रिटिशर्स दे वांट देम टू बी सेटल्ड होना चाहते थे, सेटल्ड होने के लिए उनको वाटर की स्कर्सिटी की, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही थी। सेकंड, जब उन्होंने फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया तो उनको वहां से जाना पड़ा, ठीक है, बिकॉज दे वर नॉट अलाउड टू डू शिफ्टिंग कल्टिवेशन, वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन को अलाउ ही नहीं कर रहे थे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनको आ रही थी, हमने सारा कुछ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ओके। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, yes, Harman and Nandini, they have also given earlier response. So any other students, please raise your hand, beta. Other than Nandini and Harman, raise your hand to answer the next question. And yes, Ananya, answer the next question. Yes, ma'am. The shifting cultivators were forced to take up a settled cultivation, but the type of land and shortage of water meant they could never produce enough. Many of them moved to the other areas in search of work when access to the forest was restricted by British. Okay, बच्चे गुड, ठीक है, ये आंसर शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की क्या प्रॉब्लम्स है ना। So now the next question is powers of tribal chiefs, ki how their power was changed under the colonial rule. Yes, so I will take your names if you will not give yourself. Hanji. Yes, Akul, you will give answer to this question. Hanji. Akul. Give Yes, answer ma'am. to this question. Ma'am, yes. How did the powers of tribal? Ma'am, yes. Under British rule, the functions and powers of the tribal chiefs changed considerably. They were allowed to keep their land titles over a cluster of villages and rent out lands, but they lost much of the administrative power and were forced to follow laws which were made by Britishers. They also had to pay tribute to the British. Yes, good.
So Britishers, with the coming of Britishers, they have prepared some rules, and these chief, they have to follow those rules. So now their powers, administrative powers has been reduced. They were the chief, लेकिन उनकी power कम हो गई. ठीक है? So all these points you have to give. So what accounts for the anger of tribal against the Dikus? Dikus के लिए tribals का गुस्सा क्यों था? Yes. So now Gautam. Yes, Gautam V. Gautam V. Hanji, Gautam Veer, give the answer next. Hanji, Gautam Veer, give the next answer. Yes, Bache, you are writing in chat box, so please give the answer also. Just 1 or 2 questions is left. Okay, so yes, Pari. Yes, ma'am. The tribals wanted to drive out the missionaries, moneylenders, Hindu landlords, and the government because they saw them as the cause of the misery. The following facts account for their anger against the Dikus. They were the land policies of the British were destroying their traditional land system. Hindu landlords and moneylenders were taking over their land, and missionaries were criticizing their traditional culture. Yes, correct. So all these points that we have discussed now, कि how who were Dikus, Christian missionaries, moneylenders, okay? So these Hindu landlords, so all they were against these. So they were anger because they were against their traditions. Okay, they're all the misery. They were responsible for their miserable conditions. So next is question. Yes, Harman. Yes, ma'am. Birsa talked about a golden age, a Satyug, an age of truth in which, like in the past, the tribal would live a good life, construct embankments, tap natural springs, plant trees and orchards, and practice cultivation to earn their living. He talked of an age in which the tribals would not kill one another and would live an honest life. His golden age consisted of a reformed tribal society in which there was no place for vices like liquor, uncleanliness, witchcraft and sorcery, and outside forces like the missionaries, Hindu landlords, moneylenders, traders, and the Europeans. The vision was appealing to the tribal people, as all the vices and outside forces that Birsa talked about were indeed thought of by everyone as the root causes of their misery and suffering. Yes, so Birsa's vision of golden age, as we have discussed now, what was his vision? Uska vision kya tha? So all these points you have to discuss. Or at last why such vision appeal to the people? अब उनके people क्योंकि ये सारी conditions जो थी miserable conditions तो वो भी उनसे बाहर आना चाहते थे. So that's why his vision of golden age वो लोगों को बहुत अच्छा लगा. So all these are the questions from this chapter. So if there is any doubt from any question or topic. Yes, Nandini. Yes, Nandini. Nandini, you have raised your hand. Okay. Okay, so if there is no doubt, so please complete these questions on your notebook. Okay, go through the whole topic from your book also. Okay, as I have told you, you have to underline the important points, and I hope you have noted down the points side by side. Okay, so okay, so complete these questions. Okay.